अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो है अभी ऑनलाइन कंटेंट को बहुत डिटेल में जो है उससे हमने थोड़ी सी अक्वेंटेंस ली और हमने उसकी बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल इम्प्लीकेशंस को डिस्कस किया है. ठीक है, वील मूव अ लिटिल फॉरवर्ड नाउ एंड वील टॉक अबाउट मीडिया यूटिलाइजेशन, a converging digital stream. But before that, I see a small paragraph that is more towards what's this? Yeah, here it is. It's more towards content, audience, and market. Where are the eyeballs and the money? I'll see if there's something that is worth to be shared from here. I'm sure there is. So, yeah, let's get back. जी, ये तो पैसेज आपका है, कंटेंट, ऑडियंस एंड मार्केट, वेयर द आईबॉल्स, वेयर आर द आईबॉल्स एंड द मनी. इसमें बेसिकली राइटर जो है बेसिकली आपसे वो ये बात कर रहा है. आपके सामने स्टूडेंट्स ये फिगर है इस वक्त. ठीक है, here we have the annual media consumption. So is basically talking about this figure here. मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ. राइटर में बेसिकली बता रहा है कि जो सेल्स है टैबलेट्स की और स्मार्टफोन्स की, that has created a new revenue stream both for the entertainment industry and for the media firms in precision, and it has affected their consumer behavior as well. Because the new technology is being introduced via tabs and smartphones. It is affecting people's ways of watching media and entertainment both. So what we basically summarize from here is that content today is no longer, it's no longer just restricted to the physical devices. ठीक है, जहाँ जहाँ कंज्यूमर मूव कर रहा है घर से बाहर, जो जो मोबिलिटी वो एक डिवाइस के साथ साथ मोबाइल होते जा रहे हैं. So content is no longer tied to physical products. It can be delivered on the internet to multiple mobile devices, and it is reducing costs for consumers. I mean, television खरीदना और एक हैंडी स्मार्टफोन खरीदना जो है, ये दो अलग अलग ऑप्शंस हैं. और जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है और जो ऑनलाइन कंटेंट की अवेलेबिलिटी है और इसकी परवेसिवनेस है और जिस स्पेस से एंटरटेनमेंट और मीडिया हमें इस ऑनलाइन कंटेंट थ्रू मिल रहा है, तो कंज्यूमर्स के पास जो है आज अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं आज. ठीक है, दिस इज चेंजिंग देयर बाइंग बिहेवियर एज वेल. हम इसको यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं कि टेलीविजन जो है आज यूएस से अगर हम बात करें तो I wonder why this picture is hazy. Please forgive me for that. I'll try to I don't know, I just find this picture a little hazy, and if I open it for you, if I blow it up so it grows more hazy, you can open it in your accounts. Anyways, so if you look at okay, it's better now, thank you. If we look at the annual media consumption, we see that television is around 1,500 hours per year. This is the per year, I would say, index, the markup, and this is the media channel. So we have digital content here, which is available from mobile gadgets. This is also available from desktop, and then there are other devices too. Then we have television, we have radio, we have newspapers, and we have magazines. तो ये सारे जो है मीडिया चैनल के vehicles हैं. ठीक है, इसमें किसी point in time पे अगर हम डेटा चेक करें 2013 का, तो ये जो आपको सबसे टॉल जो बार नजर आ रहा है आपको यहाँ पे 2013 में यूएस में ये टेलीविजन था. लेकिन 2016 में अगर हम देखें तो टेलीविजन यहाँ पे है और जो डिजिटल कंटेंट है दैट इज सुपरसीडेड टेलीविजन. ठीक है, सेकंड मोस्ट वॉच्ड मीडिया जो चैनल है वो टेलीविजन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो डिजिटल है आज, जिसमें मोबाइल एक्सेस है और डेस्कटॉप के थ्रू जो है एंटरटेनमेंट जो है वो हासिल की जाती है. ठीक है, सही है. 2016 का पिक्चर है आपके पास. ठीक है, these are statistics of 2016. ठीक है, each American spends around 4,300 hours annually on various types of media. ठीक है, time spent on the internet, both mobile and desktop, is expected to exceed time spent on traditional television. So this is traditional television. ठीक है, time spent on digital, that includes mobile and desktop, it exceeds the traditional television option to watch media. ठीक है, तो ये बात हम कर चुके हैं. इसके बाद जो है हम बात करेंगे
मीडिया यूटिलाइजेशन की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मीडिया यूटिलाइजेशन की, दैट इज here is that we have media utilization. So it is talking about a converging digital stream, ठीक है। Here we're talking about a convergible digital stream, जिसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि कि कलेक्टिवली जो है जूं पेनिट्रेशन बढ़ी है मोबाइल डिवाइसेस की, जिसमें टैबलेट्स हैं और स्मार्टफोन्स हैं, तो उससे एक चीज सामने जो आई है वो ये है कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट all together listening to radio, watching TV, movies and reading books and newspapers and even magazines. Obviously बात है जूं जूं ऑनलाइन कंटेंट में प्रोलिफरेशन आई है, जूं जूं से पेनिट्रेशन आई है, जूं जूं इसमें डेप्थ आई है और लोगों के पास ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वो फिजिकल डिवाइसेस से मोबाइल डिवाइसेस की तरफ भी आ गए हैं ना, ठीक है। पहले उनके पास सिर्फ ऑफलाइन सारे ऑप्शंस थे, नाउ दे हैव ऑनलाइन ऑप्शंस टू। तो जाहिर सी बात है जो टोटल रेट है, ठीक है, लिसनिंग रेडियो से, वॉचिंग टेलीविजन से लेके रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब चीज में जो है वो इंक्रीज देखने में आया, द टोटल अमाउंट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। और जो ज्यादातर चेंज देखने में आया है वो ये है कि जो डिजिटल कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज है, जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, सही है। और कहा ये भी जा रहा है कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स द टोटल यूसेज इज लाइकली, द टोटल ऑनलाइन यूसेज इज लाइकली टू इंक्रीज एक्सीड द टेलीविजन व्यूअरशिप, जो कि अभी से हम देख रहे हैं, राइट। कमिंग ईयर्स में ये मजीद इसमें हम इंक्रीज देखेंगे। ऐसा हो ये रहा है कि एवर सिंस ये डिजिटल कंटेंट के थ्रू जो है वो स्ट्रीमिंग है, मूवीज का देखना है, म्यूजिक का देखना है, और एंटरटेनमेंट है, और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं, नशियात है, पूरी यूं जो डिजिटल होती जा रही है, तो हो ये रहा है कि जो इंटरनेट टेलीविजन जो देखने में ये आ रहा है कि जो इंटरनेट है और टेलीविजन, ये तमाम मामला जो है ये वेब के बगैर मुमकिन नहीं है, ठीक है। सो द इंटरनेट एंड टीवी, द इंटरनेट, TV, movies all being shown, they are trying to converge into a single digital stream, ठीक है। टेलीविजन हजरात जो चला रहे हैं लोग, जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो मूवी मेकिंग के बिजनेस में लोग हैं, वो सब जो हैं वो ये जान गए हैं कि आने वाले टाइम में जो डिजिटल कंटेंट है वो जो है वो एक्सीड करेगा टेलीविजन व्यूअरशिप को। सो दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ज, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू हैव वन सिंगल डिजिटल स्ट्रीम। तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये मिलके एक स्ट्रीम में काम करने वाली हैं, जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। Surveys report that 20% of online users read newspapers, books, magazines, but less internet usage does not reduce their television viewing. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने इनसाइट आपसे शेयर की, मैं रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। आपकी बुक कह रही है कि सर्वेज रिपोर्ट दैट 20% of online users read newspapers, books and magazines. Survey reports that 20% of online users read newspapers, books and magazines less, but internet usage does not reduce their television viewership. अच्छा, इंटरनेट यूजर्स कलेक्टिवली जो हैं, इंटरनेट यूजर्स कलेक्टिवली जो हैं, ओके, एक इनसाइट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए टेलीविजन व्यूअरशिप भी एग्जिस्ट कर रही है और ये सेकंड टू द बेस्ट है, ठीक है। जितने भी इंटरनेट यूजर्स उनके बारे में कहा जा रहा है कि एवर सिंस कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, सही है। तो जो रीडरशिप है ऑनलाइन इंटरनेट यूजर्स की, ऑनलाइन यूजर्स की, वो बहुत ज्यादा जो है ऑल्टरनेटिवली शिफ्ट हो गई न्यूज़पेपर्स की तरफ, बुक्स की तरफ, मैगजीन्स की तरफ, ठीक है। लेकिन जो टेलीविजन व्यूअरशिप है उनकी वो वहीं के वहीं है, दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है। दैट डिड नॉट, इंटरनेट डिड नॉट reduce the television viewing, that stays there for some reason, और हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन है इसमें, ठीक है। और 50% television viewers multitask while watching television, usually using a smartphone or a tab computer, or texting with friends, reading email, searching the web or visiting social networking sites। बिल्कुल ऐसा है कि देखिए ये जो दोनों बार्स हैं, ये मैं क्या बता रहे हैं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं और आप देख तो टेलीविजन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं उसी वक्त पे जो है। मैं स्मार्टफोन भी यूज कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड, मैं टैब पे कुछ सर्च भी कर रही हूँ, मैं फ्रेंड्स को टेक्सिंग भी कर रही हूँ, मैं ईमेलिंग भी कर रही हूँ, मैं वेब से कुछ सर्च भी कर रही हूँ, मैं सोशल नेटवर्क भी यूज कर रही हूँ। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं मीडिया के, ये एक साथ ही यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो हैं, अब हम बात करेंगे, नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज, इट caught my attention and it intrigued me, I hope ये आपको भी होगी। There's a very interesting passage on internet and traditional media.
ठीक है, कैनिबलाइजेशन वर्सेस कॉम्प्लीमेंटरिटी। सो कैनिबलाइजेशन क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है, हम जरा ये चीज समझते हैं। ठीक है, सही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा। सॉरी। देखिए स्टूडेंट्स, कैनिबलाइजेशन तो ये है कि जिसमें कैनिबलाइजेशन का मतलब बेसिकली होता है कैनिबल्स ट्राइब थे, ठीक है, देयर वर पीपल एंशिएंट। अगर हम अर्ली हम अगर ह्यूमन स्टडी करें सिविलाइजेशन को, तो दुनिया में ऐसा भी दौर गुजरा है जहाँ पे लोग जो थे दे वर कैनिबल्स एंड दे यूज्ड टू ईट देयर ओन काइंड। ठीक है, कैनिबलाइजेशन जो है एक ऐसा आप कह सकते हैं कि रुझान है कि जिसमें इंसान जो है वो अगले ही इंसान का जो है वो गोश्त खाता है। तो कैनिबल्स वर पीपल, दे हैव बीन देयर इन हिस्ट्री। ठीक है, जब ह्यूमन ह्यूमन लाइफ सिविलाइज कम थी, ठीक है, तो इंसान ने जो है वो बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। कैनिबलाइजेशन भी उसी में आता है। ठीक है, सही है, इसमें क्या है, यू ईट योर ओन काइंड, ध्यान में रखिएगा। तो कैनिबलाइजेशन बेसिकली यहाँ पे हिंट कर रहा है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को। अगर आपने ये पढ़ा हो कहीं पे, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है कि एवर सिंस आई हैव माय स्मार्टफोन विद मी, एवर सिंस आई हैव माय स्मार्टफोन विद मी, ठीक है, तो इसमें यूट्यूब है, यूट्यूब से मैं जाके उस पर मैं लाइव मूवी जाके देख सकती, लाइव न्यूज जाके देख सकती हूँ। तो इसने क्या किया है, टेलीविजन की नीड को मेरे सामने बिल्कुल खत्म कर दिया ना। आई डोंट हैव अ टेलीविजन इन माय हाउस, इन माय रूम, आई एम सॉरी, इन माय रूम। अगर मेरे मेरे पापा मुझे कहते हैं कि आपको टेलीविजन जो है मैं लगवा देता हूँ कमरे में, तो उनको मैं कहती हूँ जगह नहीं है, प्लीज मेरे कमरे में इतनी चीजें मत ना रखें, बिकॉज़ आई ऑलरेडी हैव अ स्क्रीन, आई हैव माय लैपटॉप स्क्रीन, सो आई व्हेनेवर आई वांट टू आई चेंज इट इनटू माय टेलीविजन। तो मुझे अलग से टीवी सेट खरीदने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड माय डिवाइस ऑफ अ टीवी सेट। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी जूं बढ़ती गई है कि जिससे कि अब कंटेंट आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो लोग जो हैं बहुत से डिवाइसेस अब नहीं भी खरीद रहे। तो क्या ये कैनिबलाइजेशन हुई है कि जब से कंटेंट ऑनलाइन हुआ है इसने टेलीविजन को बिल्कुल खत्म कर दिया है, ये कैनिबलाइजेशन है। ठीक है, सही है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या है कि लोग टीवी सेट्स भी घर पर रख रहे हैं, लोगों के घर में केबल भी है, सैटेलाइट टीवी भी है, तो साथ साथ लोग यूट्यूब पे भी चीजों को कॉम्प्लीमेंटली कॉम्प्लीमेंट people are using it, you know, parallelly uh, in complement to what is being shown on the television, ठीक है, as the proper transmission। कैनिबलाइजेशन में क्या है, आप चॉइस करते हैं कि आप एक चीज रखेंगे, एक चीज जो खुद ही आपके सामने वो अपना मानी खो देगी। ठीक है, जैसे रेडियोस हैं, किसी जमाने में लोगों के पास रेडियो होता था घर पे, ठीक है, अब जो है फोन्स के अंदर मेरे रेडियो है, तो लोग रेडियो सेट्स नहीं रखते ना, पीपल फाइंड रेडियो सेट्स नॉट नेसेसरी नाउ, सो दे आर ऑफ नो यूज। सो टेलीफोन में जो रेडियो है उसने क्या किया, उसने खत्म कर दिया घर में रेडियोस के ट्रेंड को रखना। सो दिस इज कैनिबलाइजेशन, वन प्रोडक्ट इज ईटिंग द मार्केट शेयर ऑफ द अदर प्रोडक्ट। ठीक है, दे आर सर्विंग द सेम पर्पस। कैनिबलाइजेशन जब प्रोडक्ट्स की होती है तो प्रोडक्ट सेम पर्पस सर्व कर रहे होते हैं, ये याद ध्यान में रखिएगा, और कंज्यूमर्स को लगता है कि ये सेम एट्रीब्यूट्स डिलीवर कर रहे हैं, तभी कैनिबलाइजेशन होगी। राइट, ठीक है। तो हम भी देखेंगे कि ये जो फिगर है आपके पास कि जिसमें कि हमारे पास ये था कि आई एम सो सॉरी बेटा, जिसमें कि हमारे पास ये हमने देखा कि जो डिजिटल कंटेंट है ये जो है ये एक्सीड कर गया है टेलीविजन व्यूअरशिप को। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 2013 में टेलीविजन जो था वो उसने एक्सीड किया था डिजिटल व्यूअरशिप को। टेलीविजन यहाँ पे था और डिजिटल व्यूअरशिप यहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि 2017 में 2016 के एंड में हमने देखा कि डिजिटल कंटेंट जो है वो एक्सीड कर गया है टेलीविजन व्यूअरशिप को। तो क्या देखने में ये आ रहा है कि क्या जो डिजिटल कंटेंट है इसने कैनिबलाइज कर दिया टेलीविजन की नीड को? आर पीपल नॉट गोइंग टू यूज टेलीविजन सेट्स, दे आर नॉट गोइंग टू बाय टेलीविजन सेट्स? या टेलीविजन के थ्रू लोग इंफॉर्मेशन को, न्यूज को, मूवीज को, एंटरटेनमेंट को होना यहाँ से देखना छोड़ देंगे क्या? क्या डिजिटल जो कंटेंट है वो इतना एम्पावरिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि टेलीविजन ऑब्सोलीट हो जाएगा? क्या ये होने वाला है?
ठीक है, या दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंटरीली इस्तेमाल होंगे, दोनों एक साथ इस्तेमाल होंगे। लोग डिजिटल डिवाइसेस को भी रखेंगे, डिजिटल कंटेंट से भी मुस्तफीद होंगे, जो कि मोबाइल्स के थ्रू है, डेस्कटॉप के थ्रू है, देयर आर अदर ऑप्शंस टू, और टेलीविजन भी साथ साथ चलेगा। अब हम ये बात करेंगे, ठीक है, सही है। सो वी हैव इंटरनेट एंड ट्रेडिशनल मीडिया, कैनिबलाइजेशन वर्सेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं मैं आपसे पूरे पैसेज में शेयर करती हूँ। मुझे, मेरे लिए ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, आई समहाउ लाइक्ड इट, क्योंकि इसमें जो इनसाइट थी वो काफी विविड और काफी क्लियर थे, एंड इट गिव मी मोर अ रीजन कि व्हाई इज इट कि देयर इज इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल prefer internet online content, or what kind of people prefer traditional media. So it was written very differently, and I found a lot of answers in it. तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कैनिबलाइजेशन और कॉम्प्लीमेंटेरिटी है क्या। ठीक है, सही है। तो हम इसको जरा सा देखते हैं। कैनिबलाइजेशन तो मैंने आपको बताया, ठीक है, सही है। इसमें क्या है कि यू आर टेकिंग थिंग्स एज एन ऑल्टरनेटिव, कि now that I can watch news live on YouTube, so I don't need to have a TV set. ये cannibalization है, you are finding alternatives, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी जब चीजें होंगी तो आप चीजों को सपोर्ट यूज करेंगे कि नहीं, आपको यूट्यूब भी चाहिए घर पे, ठीक है, ऑफिस में आपको अपनी जरूरत है यूट्यूब की भी, और आपको टेलीविजन सेट भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, आप सपोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैनिबलाइजेशन में यू आर गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, यू आर फाइंडिंग वन एंड रिलीजिंग द अदर, यू डोंट फाइंड द नीड ऑफ इट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी में चीजों को आप यूज कर रहे हैं इन सपोर्ट, ठीक है, सही। अच्छा, तो अब हम थोड़े से बात करते हैं मीडिया हैबिट्स की, कि कौन लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, क्या उनको, कौन लोग हैं जो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन कंटेंट से अपने आप को जो है वो एक्वेंट करते हैं। इज इट दैट दे आर अनअवेयर कि टेलीविजन भी आपके लिए वही काम कर रहा है, ट्रेडिशनल मीडिया भी वही काम कर रहा है, या कौन लोग हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया यूज कर रहे हैं और ऑनलाइन कंटेंट होने के बावजूद भी इससे नहीं हट रहे। तो ये चॉइसेस लोग किस तरह से बनती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बहुत अमल दखल जो है किसी भी ऑडियंस के या किसी भी कंज्यूमर के मीडिया हैबिट्स का होता है। ये बात तो सही है कि आज जो है हमारे पास जो है वो, वी हैव हाई रेजोल्यूशन टैबलेट कंप्यूटर्स, वी हैव इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो काफी बढ़ गई है, बट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट एंड दीज हाई रेजोल्यूशन टैबलेट कंप्यूटर्स, टेलीविजन व्यूइंग रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, टेलीविजन व्यूइंग रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वीडियो व्यूइंग ऑन ऑल डिवाइसेस हैज इंक्रीज्ड, वो चाहे ट्रेडिशनल हो या इंटरनेट के थ्रू हो, वीडियो व्यूइंग जो है ऑल टुगेदर बढ़ी है, ठीक है। रीडिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, जिसमें कि फिजिकल बुक्स भी आ जाती हैं, दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। Total music consumption measured in hours a day listening to music has increased dramatically, even as CDs decline. Movie consumption has increased dramatically, even as DVD sales decline markedly. ठीक है, सही है। तो हमने देखा कि ऐसा नहीं है, हमने जो जितना भी पैसेज मैंने आपके लिए भी पढ़ा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी, चीजें कैनिबलाइजेशन की तरफ नहीं जा रही, चीजों को सपोर्ट में यूज किया जा रहा है। यानी कि डिस्पाइट के इंटरनेट जो है, हमारे पास हाई रेजोल्यूशन इंटरनेट आज है, कंज्यूमर्स के पास जो है डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, लेकिन टेलीविजन व्यूअरशिप जो है वो फिर भी एग्जिस्ट करती है। हमने फिगर देखी, उसमें सेकंड टू द बेस्ट थी वो, ठीक है। ओवरऑल जो वीडियो व्यूअरशिप है वो बड़ी है, राइट, ठीक है। बुक्स की तरफ रुझान बढ़ा है, तो फिजिकल बुक्स भी आ जाती है, तो फिजिकल बुक्स के ट्रेडिशनल मीडिया कंटेंट है ना, ठीक है, वो भी साथ साथ चल रहा है। साथ साथ का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ठीक है। म्यूजिक लिस्निंग जो है वो बतदरीज दुनिया में बढ़ी है, ठीक है, सही है। टोटल म्यूजिक कंजम्पशन जो है अगर से मैयर हम किया जाए तो वो बढ़ी है, और डिस्पाइट के डीवीडीज अब कोई नहीं खरीदता, ठीक है, उसके सेल्स में डिक्लाइन आया है, तब भी जो है वो म्यूजिक जो है कंजम्पशन वो बढ़ी है, ठीक है। लिसनिंग टू म्यूजिक हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली, even though CDs have people buy less CDs, so that has gone to a decline. मूवी कंजम्पशन बहुत बड़ी है ड्रामेटिकली, डिस्पाइट के डीवीडीज डिक्लाइन हुई है। तो इस केस में क्या है, कैनिबलाइजेशन हुई है। एवर सिंस मूवीज जो हैं हमें अब डाउनलोड पे मिल जाती है, मूवीज जो हैं हम लाइव स्ट्रीमिंग से देख लेते हैं, ठीक है, तो हम डीवीडीज नहीं खरीद रहे। तो लाइव मूवीज का देखना
लाइव स्ट्रीमिंग से मूवीज का देखना, उनको डाउनलोड करके देखना, सब्सक्रिप्शन से देखना, जैसे हम नेटफ्लिक्स पे करते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, कैनिबलाइजेशन किसकी हुई है, डीवीडी सेल्स, ठीक है, वो डिक्लाइन करेंगे, तो ये कैनिबलाइजेशन है। म्यूजिक का बढ़ना, म्यूजिक की तरफ दुनिया में रुझान के वो बढ़ रही है, पीपल आर लिसनिंग टू म्यूजिक टुडे डिस्पाइट के सीडीज डिक्लाइन हुई हैं, ठीक है, तो ये अब कहाँ से लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट से सुन रहे हैं ना, तो ये कैनिबलाइजेशन है, ठीक है, सही। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो डिवीजन है ऑफ टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, हम जरा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन है कि कंज्यूमर्स स्पेंड अराउंड 20% ऑफ देयर टाइम ऑफलाइन, consumers spend 20% of their time online, I'm sorry, on social networks, ठीक है, मैं और आप जो हैं, ठीक है, वो 20% टाइम जो है अपना सोशल नेटवर्क्स पे गुजारते हैं, जिसमें 17% जो है इट गोज इनटू डूइंग ईमेल, 30% गोज ऑन वाचिंग ऑनलाइन वीडियोस, 12% of the time goes on searching things on the internet, and around 11% of the time goes on around playing games, ठीक है। जो बाकी रिमाइंडर ऑफ द टाइम है, that goes towards listening to online radio, um, doing other activities, reading newspapers, magazine, blogs, etc. ठीक है। अच्छा, जनरली अगर बात की जाए तो इंटरनेट यूजर्स स्पेंड अराउंड 15 to 20% लेस टाइम रीडिंग ट्रेडिशनल बुक्स, जो इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है, इंटरनेट यूजर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब उनके हम जरा हैबिट्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेट यूजर्स स्पेंड 15 to 20% टाइम लेस रीडिंग ट्रेडिशनल बुक्स, यानी कि हम ई रीडिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है। We spend 15 to 20% less time reading newspapers and magazines and watching broadcast television and box office movies and talking on the phone or listening to broadcast radio, ठीक है। ये हैबिट्स बताए गए हैं आपको इंटरनेट यूजर्स के, मैं रिपीट करती हूँ, इनके हैबिट्स में क्या है कि दे स्पेंड 15 to 20% टाइम लेस on reading books, newspapers and magazines and watching broadcast television, ठीक है, और box office movies on talking on phone or listening to broadcast radio, ठीक है। On the other hand, internet users consume more media of all types than non-internet users. ठीक है? Internet users consume more media of all types than non-internet users. Obviously बात है, इंटरनेट से आपकी जब acquaintance बढ़ती है तो आपकी ये एक कीननेस होती है कि आप हर तरह के मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो इंटरनेट अफिनिटी है ना, आपकी उससे जानकारी है, आपकी उससे acquaintance है कि you want to learn more about the other devices, which are giving you all these options, ठीक है। अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें इंटरनेट यूजर्स की, तो कहा जा रहा है कि जो डेमोग्राफिक अगर हम बात करें, पीपल हु आर मोर टुवर्ड्स लिटरेसी, हु आर मोर वेल्दी, हु आर मोर टेक सेवी, आर मोर मीडिया अवेयर। मीडिया की अवेयरनेस जो है, अगर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों की बात करें, कलेक्टिवली स्पीकिंग मीडिया की तरफ लोगों का रुझान जो ज्यादा होता है, और डेमोग्राफिकली कैसे होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स एजुकेशन, दे आर मोर a literate group of society, they are wealthy, टेक्नोलॉजी को लेके काफी acquaintance होती है, they are more tech savvy and they are more media aware, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी देखी गई है इसी डेमोग्राफिक ग्रुप में कि ये जो है मल्टीटास्किंग भी बहुत करते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि इन एडिशन टू बीइंग यूजर्स फॉर इंटरनेट, ठीक है, ये भी देखा गया है कि ये जो है, ये while using the internet frequently, ये साथ साथ जो है they are also listening to music, they are watching television and they are using instant messages while working on their tasks। तो मल्टीटास्किंग बहुत देखी जाती है इनके अंदर। दूसरी चीज जो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है वो है मल्टीमीडिया का यूसेज। मल्टीमीडिया का जो यूसेज है उसने जो है काफी it has caused cannibalization to a very large extent, especially in the case of visual media, ठीक है, सही है। तो वो भी मैंने आपसे कहा था कि लोग जो हैं वो डीवीडीज जो हैं वो छोड़ के अब मूवीज को जो है डाउनलोड कर रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन जो है वो की जाती है, जैसे नेटफ्लिक्स का है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी जो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो कैनिबलाइज हुई है इससे, ठीक है। लेकिन जो जो फिजिकल बुक्स है, रीडरशिप जो है वो वहीं की वहीं है, ठीक है। पीपल हु हैव बीन रीडिंग बुक्स फिजिकली, दे टेंड टू डू इट सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब से मतलब ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल हुआ है तो प्रिंट मीडिया जो है वो फिजिकल बुक्स बननी छपनी बंद हो गई हैं। ऑनलाइन कंटेंट ने बस कंपटीशन दे दिया है प्रिंट मीडिया को, ठीक है। जो ऑफलाइन प्रिंट मीडिया है, जो हार्ड कॉपी बुक्स बनती हैं, न्यूज़पेपर्स बनते हैं, उनको कंपटीशन एक मिल गया है। ऑनलाइन जो कंटेंट है उसने एक आप कह सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव सोर्स दे दिया लोगों को कि आप जो है वो
सॉफ्ट कॉपी में भी बुक्स को, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को जो रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट देखने में ये आया है कि फिजिकल बुक्स जो है फिर भी ज्यादा पढ़ी जाती हैं। ठीक है। तो बॉटम लाइन डिस्कशन बेसिकली इसका ये है कि जो इंटरनेट वो है इट इज कॉजिंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट्स जो है ऑफर कर रहा है, इंटरनेट इज सब्स्टिट्यूटिंग फॉर फिजिकल मीडियम्स। ठीक है, और इसको जो है इंटरनेट को इन सपोर्ट जो है वो यूज किया जा रहा है, किया जा सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया जा सकता है। ये 100% हर केस में कैनिबलाइजेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल मीडिया जिसमें फर्म्स हैं, इसमें न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, पब्लिशर्स हैं, टेलीविजन हैं, मूवीज हैं। ठीक है, ये कंटेंट जो है वो डेवलप कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं और एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्या है कि इंटरनेट की वजह से आज लोगों के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज जो बहुत मैटर करती है स्टूडेंट्स, वो देखिए इंटरनेट और जो ऑफलाइन और जो ऑनलाइन मीडिया है ये क्या है, सोर्सेज है। ठीक है, सही है। सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो कंटेंट मैटर करती है कि आप दिखा क्या रहे हैं। राइट। ऑनलाइन सोर्सेस एक एक रास्ता है न्यूज को आप तक पहुंचाने का। ठीक है, यूट्यूब से जब मैं न्यूज देखती हूँ तो वो न्यूज जो है वो जियो बना रहा होता है, वो न्यूज जो है बीबीसी बना रहा होता है। यूट्यूब न्यूज नहीं बना सकता, वो सिर्फ एक जरिया प्रोवाइड करता है कि आप जो है न्यूज को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट द सोर्सेज दैट मैटर कि आप ऑफलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं, बेसिकली द कंटेंट ऑन द न्यूज दैट मैटर्स। ठीक है, और जो ऑनलाइन कंटेंट में जो प्रोवाइडर्स हैं वो जो है उनको कोई एज या उनको कोई जो है वो सबकत नहीं है कंटेंट बनाने में, ज़हन में रखिए, वो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं कंटेंट को देखने की। कंटेंट क्या होगा, दे आर नॉट गुड एट मेकिंग कंटेंट, लेट अस रिमेंबर दैट। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट रिगार्डलेस ऑफ द मींस ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। अच्छा, आगे तो हमने पैसेज पूरा डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडिया रेवेन्यूज की। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये बताया जा रहा है, let me see if there's a figure for that. Yes, this figure is very important. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक फिगर है कि जिसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि मीडिया रेवेन्यूज जो हैं वो किस किस तरह से अर्न किए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे हैवी परसेंटेज देखूं तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो अच्छा, ये मीडिया रेवेन्यूज अगर हम बाय चैनल देखें तो वापस टेलीविजन है, मीडिया चैनल है, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, रेडियोज हैं, ये सब जो है ये एंटरटेनमेंट और मीडिया के, नॉट एंटरटेनमेंट ऑल ऑफ देम बट दे आर मीडिया आई वुड से चैनल्स। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यूज जो है वो टेलीविजन अर्न करता है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय न्यूज़पेपर्स। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, और इस तरह से ये तमाम मामला हैं। ठीक है, सही, राइट। तो इसमें हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया में मेरे पास टेलीविजन आ जाता है। ठीक है, मेरे पास प्रिंट आ जाता है जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं, और मेरे पास आ जाता है रेडियो। डू आई हैव रेडियो है, ये है। ठीक है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स और रेडियो जो है ये ट्रेडिशनल मीडिया है। ठीक है, ये जो है हम ये देखते हैं कि ये जो है ये जस्ट अ मिनट, ट्रेडिशनल मीडिया में मेरे पास टेलीविजन है, प्रिंट है एंड रेडियो। आई हैव टेलीविजन। डू आई हैव just a minute, I have print, that goes newspapers, that comes newspapers, and I have radio. Do I have radio somewhere? I have radio. So television, newspapers, and radio, they make traditional media, and they dominate the entertainment and media market. ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास इंटरनेट मीडिया है, इंटरनेट मीडिया में मेरे पास आ जाता है स्ट्रीमिंग वीडियोस। सो डू आई हैव स्ट्रीमिंग वीडियोस समवेयर? आई हैव streaming videos. Okay, I have music. So do I have music somewhere? I have music. Okay. And do I have other content? अदर कंटेंट मेरे पास आ जाता है, बॉक्स ऑफिस आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा होम वीडियोस आ जाएंगी। तो ये जो है ये भी ग्रो कर रहे हैं। इनकी परसेंटेजेस कितनी है, 3% है, 7% है, 7% है, 9% है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है 11%, 11%, 10%, 27%, ट्रेडिशनल मीडिया की परसेंटेजेस जो है वो हैवी हैं।
ठीक है, ये जो है मेरे पास, ये जो है ये इंटरनेट जो है वो, दिस इज इंटरनेट मीडिया, ये सारा जो है। और ये जो है ये ट्रेडिशनल मीडिया। तो हम देखें ट्रेडिशनल मीडिया के परसेंटेजेस जो है ये हैवी हैं, एंड दे मेक मोर रेवेन्यूज इन कंपैरिजन टू इंटरनेट मीडिया। ठीक है, सही है, राइट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो है हम बात करेंगे ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन की। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये बेसिकली ये देखना है कि we need to see figure 10.3 and 10.4 for this। इसमें चीजें काफी क्लियर होंगी हमें। 10.3 and 10.4, ये मेरे पास जो है फिगर 10.3 है। इस फिगर 10.3 मेरे पास ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन है। ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट में मेरे पास वाई एक्सिस पे है परसेंटेज ऑफ इंटरनेट यूजर्स। ठीक है, और एक्सेस मेरे पास है ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन रेडियो और मोबाइल फोन गेम्स। ये भी इंटरनेट की बात हो रही है। ऑनलाइन टीवी शोज, ऑनलाइन मूवीज, ऑनलाइन कैजुअल गेम्स, मोबाइल फोन म्यूजिक, ई बुक रीडर्स, ऑनलाइन मैगजीन्स एंड ऑनलाइन कंसोल गेम्स। अच्छा, ये सारा जो है ये ऑनलाइन कंटेंट की कंजम्पशन की बात हो रही है। ये सारा जो है ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन की बात ही हो रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो जो कंटेंट कंजम्पशन है वो ऑनलाइन वीडियोस की है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स। ठीक, सही है। ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन रेडियो एंड ऑनलाइन वीडियो गेम्स, दे ऑल हैव अ 67%। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है वो ऑनलाइन वीडियोस की तरफ रुझान जो है वो, इससे कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, और सबसे लीस्ट जो है वो कंसोल्स की तरफ है। ठीक है, ई बुक रीडिंग जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, इससे कंजम्पशन कम है। और म्यूजिक जो है वो मोबाइल फोन म्यूजिक या जो ऑनलाइन कंटेंट में म्यूजिक भी आ जाता है, उसकी परसेंटेज जो है वो ज्यादा है बुक रीडिंग से, ई बुक रीडिंग से। ऑनलाइन मूवीज जो है वो ज्यादा कंजम्पशन है उसकी इन कंपैरिजन टू म्यूजिक एंड इन कंपैरिजन टू ई बुक रीडर्स। ठीक है, सही है, राइट। अच्छा, इससे जो है हम ये तो सिर्फ मेरे पास सिंपल ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन है। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें यहाँ पे एक फिगर और देखनी है। हमें एक फिगर और देखनी है यहाँ पे, और वो है फिगर 10.4। दिस इज द फिगर। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है ये। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंटेंट रेवेन्यूज, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंटेंट रेवेन्यूज। तो ये 2014 से लेकर 2019 तक के हमारे पास एक फिगर है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो डार्केस्ट स्लैब है ये मेरे पास ऑनलाइन टीवी एंड मूवीज का है, राइट। ठीक है, then I have this one is internet radio, ऑनलाइन वीडियो गेम्स का ये है, और सबसे थिनेस्ट जो है वो ऑनलाइन म्यूजिक का है। ठीक है, सही है। तो ये है ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंटेंट रेवेन्यूज। सबसे ज्यादा जो है ऑनलाइन कंटेंट में रेवेन्यूज कौन अर्न कर रहा है, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यूज जो है हमने देखा कि ऑनलाइन टीवी जो है, ये जो है देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यूज ये अर्न कर रहा है। 2014 में भी इसके रेवेन्यूज जो थे वो तकरीबन तकरीबन वो ऑनलाइन वीडियोस गेम्स के बराबर ही थे। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो सबसे डार्कर पोर्शन है ये ऑनलाइन टीवी और मूवीज का है, तो उसका रेवेन्यूज जो है 2014 से लेकर 2019 तक देखें ये बढ़ा है। सो मोस्ट रेवेन्यू in the online content world is earned by online TV and movies। ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है जो सेकंड जो बेस्ट जो सेकंड हाईएस्ट जो है वो रेवेन्यू मेकिंग जो है वो जा रही है गोइंग टुवर्ड्स वीडियो गेम्स। ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स वीडियो गेम्स, राइट। ठीक है, देन आई हैव द इंटरनेट रेडियो, एंड फाइनली आई हैव ऑनलाइन म्यूजिक। जी, हम रेवेन्यू मेकिंग की बात कर रहे हैं।
ठीक है, इस तरीके सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज या बिजनेस जो है वो ऑनलाइन कंटेंट में कौन कमा रहा है, क्योंकि जो कंटेंट जो है वो रेडियोस के थ्रू भी है, म्यूजिक के थ्रू भी है, टीवी और मूवीज के थ्रू भी है, और वीडियो गेमिंग के थ्रू भी है ना। तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर चैरिटी, यू वांट सम मनी बिहाइंड इट, यू वांट टू मेक सम बिजनेस आउट ऑफ इट। ठीक है, तो हमने देखा कि टेलीविजन जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न कर रहा है। ठीक है, सही। अच्छा, अब हम जो है स्टूडेंट्स वो बात करेंगे। वी विल नाउ टॉक अबाउट, या सब रीड करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है स्टूडेंट्स यहाँ पे, विच आई वुड नॉट लाइक टू लीव ऑन यू। इट्स ऑन मीडिया कन्वर्जेंस। मैंने आपसे कहा था कि मीडिया जो है, अभी सेशन हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा था कि मीडिया जो है स्टूडेंट्स से कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, पहले से ट्रेडिशनल होता था, पहले से ऑफलाइन होता था, सिर्फ टेलीविजन के थ्रू था, सिर्फ फिजिकली जो प्रिंटेड अखबार होता था उसके थ्रू था। लेकिन जब इन मीडिया हाउसेस को भी चला है पता, जो बुक सेलिंग में लोग हैं, जो फिजिकली बुक सेल कर रहे हैं, बुक स्टोर्स हैं, उनको तो चला पता कि इंटरनेट की पेनिट्रेशन काफी बढ़ गई है। It has proliferated to a very deeper level, so they have thought of converging now with the online content providers. ठीक है, तो कन्वर्जेंस जो है टेक्नोलॉजिकली भी हो रही है, कंटेंट के थ्रू भी हो रही है, और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर भी जो है वो काफी ज्यादा कन्वर्जेंस उसमें भी नजर आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम प्लीज मेक श्योर कि इसको आप खास तौर पर देखें। ठीक है, मीडिया कन्वर्जेंस जो है, ठीक है, सही है। ये ऑनलाइन कंटेंट जब से सामने आया है, ठीक है, उसका जब से थॉट काफी प्रेवलेंट हुआ है, कंटेंट आप लोगों के पास ऑनलाइन भी है, तो मीडिया कन्वर्जेंस काफी सामने आई है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस भी है, कंटेंट के हिसाब से भी है, और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज, हम जरा बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, अच्छा, पहले जो है हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की। ठीक है, पहले जो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की, फिर हम कंटेंट की बात करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशंस हैं जहाँ पे मतलब हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे। ठीक है, सही। मीडिया कन्वर्ज इवेंचुअली होना पड़ा, क्योंकि आप महज मैंने आपसे कहा कि लोगों के पास आज ऑप्शंस हैं। इंटरनेट ने क्या किया है, लोगों के पास एवर सिंस जो है स्मार्टफोन्स हैं, टैब्स हैं, अब और बाकी मोबाइल गैजेट्स भी हैं, अब तो एंटरटेनमेंट जो है, या इंफॉर्मेशन है, या न्यूज़ है, या गेमिंग है फॉर इंस्टेंस, या इंफॉर्मेशन है, या किताब को पढ़ना है, मैगजीन को पढ़ना है, वो अब सिर्फ ऑफलाइन सोर्सेज से नहीं है। ठीक है, सही, फिजिकल डिवाइसेस से नहीं है। ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं, सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो जो प्रायर हमारे पास मतलब जो हब्स थे ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के, पब्लिशिंग इंडस्ट्री से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, उनको आज इवेंचुअली कन्वर्ज करना पड़ा है। ठीक है, सही है। सो ये कन्वर्जेंस जो है टेक्नोलॉजिकल भी है। अगर टेक्नोलॉजिकल की बात करें तो ये डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से भी है, डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी है, और प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से भी है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी तो ये कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजिकल भी हुई है, ये कन्वर्जेंस जो है कंटेंट के हिसाब से भी हुई है। कंटेंट में अगर हम बात करें तो ये डिज़ाइन की बात है, प्रोडक्शन की बात है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एज अ होल भी कन्वर्ज हुआ है। राइट, ठीक है, हम सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस जो है उसमें क्या है कि आज जो है हाइब्रिड डिवाइसेस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें फंक्शनलिटी जो है वो इस तरह की है कि वो वही जो आपके पास डिवाइस है, ठीक है, वो आपके लिए मीडिया प्लेटफॉर्म का काम भी करता है, आपके लिए बुक भी है, न्यूज़पेपर्स भी है, टेलीविजन भी है, एट अ टाइम वो आपके लिए मूवी प्ले कर रहा है, वो आपके रेडियो प्ले कर रहा है, गेमिंग भी कर रहा है। ये सब चीज़ें आज सिंगल डिवाइस के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस। ठीक है, I mean 20 years back the television set I had with me, it was not a smart TV। ठीक है, लेकिन क्योंकि सोनी काइंड ऑफ कंपनीज विच आर मेकिंग टेलीविजन टुडे, उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी क्या है, कन्वर्जेंस हो रही है लोगों के घरों में, सोसाइटी चेंज आ रहा है। ठीक है, रीजनली चेंज आ रहा है, तालीम जब आम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ रही है, लिटरेसी जब बढ़ रही है, तो ज्यादा लोगों, पीपल आर मोर टेक सेवी स्पेशली इन द अर्बन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो लोग जो हैं आज फिर स्मार्ट परचेजेस करते हैं ना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ टेलीविजन सेट एंड अ डेस्कटॉप and a smart tab and different other things, people are buying one stop solutions। ठीक है, तो डिवाइसेस को ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं, जितनी भी कंपनी जो कि आज गैजेट्स बना रही हैं, डिवाइसेस बना रही हैं, दे आर पुटिंग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सही है।
उसमें क्या है, फंक्शनैलिटी होती है जिसमें कि आप 2 से 3 मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को एक ही डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि मेरा टेलीविज़न जो है, आई कैन इवन यूज़ आई मेनी अ टाइम्स व्हेन आई कैन सर्च थिंग्स ऑन गूगल फ्रॉम माय लैपटॉप, ठीक है? लेकिन जो मेरा टेलीविज़न है उसमें ऑप्शन आती है कि मैं इसी को बिल्कुल अपने मॉनिटर की स्क्रीन बना के गूगल से चीज़ें यहाँ से भी मैं सर्च कर सकती हूँ। इट हैज़ अ बिगर स्क्रीन, इट्स मोर अ गुड विज़न। तो ये क्या है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना, आपने यूज़ किया, हाइब्रिड डिवाइसेस बनाने शुरू किए हैं आपने। इसमें क्या है, द कंबाइंड फंक्शनैलिटी ऑफ 2 और मोर एक्जिस्टिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? सही है। I can read my books on my TV. I can, watch television on it. I can read newspapers on it. I can watch. I can listen to radio. I can even play games on it. तो ये एक ही सिंगल डिवाइस है, लेकिन ये मल्टीपल फंक्शंस कर रहा है आज, ठीक है? सही है। और जैसे आईपैड है, आईफोन है, एंड्रॉइड फोन है मेरे पास, इसमें जो है वो क्या है, ऑप्शन है ना मेरे पास, मतलब प्रिंट मेरे फोन से जो है मैं वो स्कैनर भी मैं यूज कर सकती हूँ, उसको फोन में स्कैन बिल्ट इन स्कैन होता है, तो मैं वो भी यूज कर सकती हूँ, मुझे अलग से स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है? म्यूजिकली मुझे अलग से म्यूजिकल डिवाइस लेने की जरूरत नहीं, मेरे फोन के अंदर बिल्ट इन है, पिक्चर में से खींच सकती हूँ, मुझे अलग से कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, एक ही डिवाइस के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ठीक है? इट इज ऑल बिल्ट इन वन डिवाइस, ठीक है? सही है। अच्छा, फिर क्या है, मैंने आपसे कहा कि कंटेंट की कन्वर्जेंस की भी जो है वो बहुत अहमियत है, कंटेंट के कन्वर्जेंस की जो है वो बहुत अहमियत है। जस्ट बेटा गिव मी अ मिनट। कंटेंट कन्वर्जेंस से बेसिकली हम बात करेंगे तीन पर्सपेक्टिव से, विल टॉक अबाउट डिजाइन, विल टॉक अबाउट प्रोडक्शन एंड विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? हम जब कंटेंट की बात करेंगे कि जब कन्वर्जेंस हो रही है, डिवाइसेस जो है वो हाइब्रिड बन रहे हैं, तो फिर कंटेंट भी ऐसा बनाया जा रहा है डिजाइन के पर्सपेक्टिव से, प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से, कि आप उसको जब टेलीविजन की स्क्रीन पर चलाएं तो मतलब रेजोल्यूशन और पिक्चर क्वालिटी रिजल्ट्स अच्छे आए, आप उसको जब लैपटॉप से चलाएं तो अच्छा आए, आप जो टैब से चलाएं, आप जब फोन से चलाएं, तो क्वालिटी टेक्नोलॉजी की जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सही है। तो जो कंटेंट कन्वर्जेंस है वो डिजाइन के हवाले से भी है, प्रोडक्शन के हवाले से भी है, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी है। पहले हम जो है बात करते हैं डिजाइन के हवाले से। देखिए स्टूडेंट्स, चीज़ों को जब टेलीविजन जब आम टेलीविजन जब स्टैंडर्ड टेलीविजन होते थे घरों पे, जब हमारे जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, फिर कलर टेलीविजन आया, तो वो थे वो सिंपल स्टैंडर्ड डिवाइसेस जिसपे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ केबल ऑपरेट कर सकते हैं। कलर टेलीविजन है आपके पास, ठीक है? सही है। मूवीज के लिए हम अलग से वीसीआर लेते थे, अलग से वीसीपी लेते थे, तो डिवाइसेस बहुत सारे थे, मूवी देखने के लिए काफी सारी चीजें हमें चाहिए होती थी, ठीक है? सही है। वीडियो कैसेट्स अलग से आते थे, राइट, ठीक है? और दैट इज हाउ वी यूज्ड टू वॉच मूवीज, आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है? सही है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या, मैंने आपसे कहा कि ये मेरे अभी जो आर्गुमेंट है ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है पीछे, कि जो जो टेक्नोलॉजी जो है वो उसको हाइब्रिड करके इस्तेमाल किया गया, एक ही डिवाइस के अंदर बिल्ट इन किया गया, तो उससे क्या हुआ कि जो पिक्चर क्वालिटी थी वो बेहतर होती गई, पिक्चर रेजोल्यूशन बेहतर होती चली गई, साउंड बेहतर होता चला गया, आपको डिफरेंट डिवाइसेस खरीदने की जरूरत नहीं, एक ही स्क्रीन के अंदर आप मूवी भी देख सकते हैं, आपको अलग से वीसीपी वीसीआर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कैसेट्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सही है। तो चीजों के डिजाइन में काफी चेंजेस आए हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन बहुत हुई है, चीजों को इंटीग्रेट करके जो है नई चीजें बनाई गई हैं, ठीक है? सही है। अच्छा, मैं जब आपसे डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपसे ये बात करूंगी कि जो हिस्टोरिकल पैटर्न है, जिसमें कि हम जब टेक्नोलॉजी को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं और मीडिया यूसेज को देखते हैं, टेलीविजन जो मैंने आपसे कहा कि बड़े स्टैंडर्ड टेलीविजन थे, ठीक है? सही है। और जी हाँ, तो चीज़ें जो हैं, टूल किट्स जो हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जिसमें टेक्नोलॉजी जो है मर्ज करके आप एक नई चीज़ बना रहे हैं, उससे ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है? सही है। नई मतलब आर्टिस्ट जो हैं वो जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए मतलब इट हैज ब्रॉट इन न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लॉइट, उनको नई कैपेबिलिटीज उनको डेवलप करनी है अपने, वो खुद एक नए क्रिएशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है? तो जो कन्वर्जेंस जब से हुई है, चीजें जो हैं आपस में असिमुलेट हुई हैं, चीजें आपस में जो है हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो नई बननी शुरू हुई हैं, इसमें जो आर्टिस्ट से लेके जो परफॉर्मिंग लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनको कंटेंट पे भी काम करना है नए तरीके से, ठीक है? दे हैव टू लर्न न्यू मेथड्स एंड न्यू टूल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट डिफरेंटली नाउ, ठीक है? सही है।
जो मैंने आपसे कहा कि जब कंटेंट ऑनलाइन नहीं होता था तो जो राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो काम को डिफरेंट तरीके से करते थे। लेकिन अब जब डिजिटल टूल्स आ गए हैं, इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल होता है, तो पूरी टूल किट जो है बदल गई है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली द डिजाइन टीम हैज टू वर्क डिफरेंटली नाउ। ठीक है, राइटर्स जो हैं, जहाँ तक बुक्स की अगर हम बात करते हैं, राइटर्स ऑफ बुक्स आर बिगिनिंग टू थिंक अबाउट वीडियोस एंड इंटरैक्टिव वर्जन्स ऑफ देयर बुक्स। ठीक है, पहले किताब जो थी वो, I used to teach a course on personality development recently a few semesters back, तो वो उसी हार्ड किताब बुक के साथ साथ एक वीडियो बुक भी आती है। ठीक है, वीडियो बुक आप जब बनाते हैं, वो जब ऑनलाइन कंज्यूमर सुनेगा, ऑडियंस सुनेगी आपकी, तो उस पूरी बुक को जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, तो उसका जो वॉइस ओवर है, उसमें जो आर्टिस्ट है, जो परफॉर्मेंस है, जो किसी की आवाज आ रही है पीछे, वो हर चीज जो है उस चीज को आप स्ट्रीमलाइन करना है ना। तो मतलब बुक राइटिंग और बुक पब्लिशिंग जो है वो उसका डिजाइन पूरा चेंज हुआ है। ठीक है, इस तरह से ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स जो हैं वो अब क्या है, लाइव भी हैं। ठीक है, तो लाइव वीडियोस हैं, और ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स जो ही लाइव वीडियोस पे गए हैं, तो क्या है, इन्हांसमेंट हो गई है ना उनके पूरे काम की, उनकी पूरी स्टोरी की। ठीक है, तो डिजाइन चेंज हुआ है। राइट। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन के हवाले से, तो प्रोडक्शन साइड पे जो हम देखें, तो जो टूल्स हैं एडिटिंग के, प्रोसेसिंग के, स्पेशली फिल्म्स को लेके, टेलीविजन को लेके, तो वो भी जाहिर है उसमें भी काफी चेंजेस हैं। दे आर आल्सो ड्राइविंग डिफरेंट कंटेंट टुवर्ड्स कन्वर्जन। ठीक है, सही है। आपने जब प्रोड्यूस करना कंटेंट अपना, तो आपने ये भी देखना ना कि उसमें कंटेंट में मतलब टेक्नोलॉजिकली ऐसी कंटेंट ऐसा हो कि वो टेक्नोलॉजिकली आप डिलीवर करें डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, तो मैसेज जो है वो अपना एसेंस ना खो दे। ठीक है, जब मतलब हार्डवेयर चेंज होगा, सॉफ्टवेयर चेंज होगा, आप मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म से उसी कंटेंट को जब चलाएंगे, न्यूज जब यूट्यूब से चले, न्यूज जब आईपैड से चले, न्यूज जब स्मार्टफोन से चले, न्यूज जब टेलीविजन से चले, तो न्यूज का जो कंटेंट है उसमें डिस्टर्बिया नहीं आना चाहिए। जब हार्डवेयर चेंज हो रहा है, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, तो क्या हम वही कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे जो हम हमें करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है हमें कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। इसमें डिजाइन आ जाता है, बट इसमें कंटेंट आ जाता है, जिसमें फिर फाइनली आ जाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड भी आ जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड की हम जब बात करें, तो वी नीड टू सी दैट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, और जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, उनके पास अपने अपने डिवाइसेस हैं। ठीक है, सही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स वो लोग हैं जो कि न्यूज़ को मुझ तक अवेलेबल करेंगे। अल्टीमेट कंज्यूमर्स मैं हूँ, जो न्यूज़ को सुनूंगी या मैं जो मूवी को देखूंगी। ठीक है, सो ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड इज इम्पोर्टेंट दैट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, दे हैव द डिवाइसेस। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अपने सेट ऑफ डिवाइसेस हो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कंज्यूमर्स के पास अपने डिवाइसेस हो टू रिसीव, स्टोर एंड एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। ठीक है, तो it goes hand in hand. ठीक है, while for most part of the technology companies have succeeded in giving consumers portable devices to receive online content, बिल्कुल सही बात है। आज मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, होम ड्यूरेबल्स की मार्केट है, गैजेट्स की मार्केट है, वो काफी बढ़ गई है, काफी उसमें डेप्थ आ चुकी है, और टेक्नोलॉजिकली कंपनीज काफी एबल हैं, काफी साउंड है, एंड दे आर गिविंग कंज्यूमर्स a lot of portable options today from which they can listen and receive and store and experience a good online content। ये बात बिल्कुल सही है। तो कन्वर्जेंस जो है वो इट इज नीड ऑफ द आवर। ठीक है, इससे बगैर जो है मीडिया सर्वाइव नहीं कर सकता। देन वी हैव इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कन्वर्जेंस। देन वी हैव इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कन्वर्जेंस। हियर आई एम। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कन्वर्जेंस जो है, इसमें बेसिकली राइटर जो है वो हमें ये बता रहा है कि वहाँ यहाँ पे ये बात कर रहा है क्रॉस मार्केटिंग की। यहाँ ये बात कर रहा है क्रॉस मार्केटिंग की। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पे मैं वक्त लूंगी, क्रॉस मार्केटिंग क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, जो थर्ड डायमेंशन कन्वर्जेंस की है वो स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, सही है, एंड इट इंक्लूड्स वेरियस मीडिया इंडस्ट्रीज। ठीक, industry convergence जो है, it refers to the merger of media enterprises into powerful synergistic combinations that can cross-market content on many different platforms and create new works that use multiple platforms। ठीक है, इंडस्ट्री कन्वर्जेंस में बेसिकली हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, तो जितने भी मीडिया हाउसेज हैं आज, जो मूवीज बना रहे हैं, ड्रामास बना रहे हैं, प्लेस बना रहे हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं सारे, ठीक है, जो रेडियो पे जितने जो चैनल्स हैं हमारे, सारे सारे मीडिया हाउसेज हैं ना सारे। ठीक है, इनको जो है आज इवेंचुअली जो है दे हैव टू सिनर्जाइज, इनको मिलके काम करना है, ठीक है, इनको अलायंसेस में काम करना है इन ऑर्डर टू स्टैंड एज पावरफुल आई वुड से कंट्रीब्यूटर्स टू द मीडिया इंडस्ट्री। ठीक है, सो दे हैव टू
कंबाइन देयर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड क्रॉस मार्केट। क्रॉस मार्केट का मतलब है कि आप ऑनलाइन इंडस्ट्री से मुस्तफीद हो, ऑनलाइन इंडस्ट्री आपसे मुस्तफीद हो, ताकि ताकि जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें क्रिएशन नए तरीके से, नई जिद्दत से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रिएट हो सके। सिनर्जी में क्या है कि 1 and 1 is 11, ठीक है। ट्रेडिशनली तो ये था ना, ठीक है, ट्रेडिशनली तो इधर और था ना, सही है। लेकिन अभी क्या है कि अलायंसेस को बहुत जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। सेपरेटली काम करना, इंडिविजुअली काम करना, आइसोलेशन में काम करना जो है, इससे सर्वाइवल जो है दैट इज कमिंग टू अ हॉल्ट, ठीक है। ट्रेडिशनली जो था फिल्म्स हैं, टेक्स्ट है, म्यूजिक है, टेलीविजन है, दे वर अ सेपरेट इंडस्ट्री, ठीक है, सही है, एंड दे वर वेरी लार्ज प्लेयर्स इन इट। फॉर इंस्टेंस हॉलीवुड एक बहुत बड़ा प्लेयर था, ठीक है। फिर हमारे पास बहुत बड़े बड़े बुक पब्लिकेशन कंपनीज थी, ठीक है। हमारे पास म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए वी हैड ग्लोबल रिकॉर्ड लेबल फर्म्स, ठीक है। बुक पब्लिकेशन के लिए वी हैड लार्ज पब्लिश हाउसेस। लेकिन अभी क्या है, जब से कंटेंट ऑनलाइन हुआ है तो दे हैव टू वर्क इन सिनर्जी, दे हैव टू वर्क विद द इंटरनेट प्रोवाइडर्स ऑफ द ऑनलाइन कंटेंट, ठीक है, सही है। तो मर्जर्स और पार्टनरशिप्स जो हैं ये काफी ज्यादा जो है सजेस्टेड आइडिया है अमंग मीडिया एंड इंटरनेट फर्म्स, ये दोनों करीब आ रही हैं, ठीक है। और दे आर ट्राइंग टू कम अप विद मोस्ट वायबल बिजनेस प्रोपोजिशंस जिसमें दोनों के लिए ग्रोथ हो, दोनों के लिए विन विन हो, ठीक है, सही है। मीडिया इंडस्ट्री कन्वर्जेंस जो है ये इट मे बी नेसेसरी टू फाइनेंस द सब्सटेंशियल चेंजेस इन बोथ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड द कंटेंट, ठीक है, सही है। Traditional media firms who create the content generally do not possess the core competencies or financial heft to distribute it on the internet. अब बहुत सारी बात सुनो, मूवी क्या होगी, उसका कंटेंट क्या होगी, न्यूज क्या होगी, उसको क्या इन्फॉर्मेशन देगी, ठीक है। ऑनलाइन मीडिया प्रोवाइडर्स जो होते, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स जो होते हैं उन्हें कंटेंट बनाना नहीं आता, ठीक है। उनके पास सिर्फ एबिलिटी होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की इंटरनेट पे। गूगल के पास सिर्फ एबिलिटी है कि वो यूट्यूब के थ्रू न्यूज को ऑनलाइन करवाए, न्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करवाए। न्यूज में कंटेंट क्या होगा वो गूगल और यूट्यूब को नहीं आता, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मीडिया उसका क्या काम है, कंटेंट क्रिएशन करना, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी ये है, ठीक है। अच्छा, उसको फाइनेंस करना, उस पूरे एफर्ट को ऑनलाइन कंटेंट पे लेके आना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना, जो इंटरनेट से वाबस्ता कंपनीज जो हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं, उनका काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बगैर कंटेंट किसी काम की नहीं है, और कंटेंट बगैर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगी कंटेंट की, उसमें हमारे पास क्या है, एप्पल है, वी हैव गूगल, वी हैव अमेज़न एंड वी हैव फेसबुक, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। उनके पास क्या है, द कॉम्पिटेंसी एंड द वेल्थ टू परस्यू इंटरनेट चैनल स्ट्रेटजीज। इंटरनेट को कैसे यूज करना है, चैनल्स कैसे बना के मामलात को दूर दराज लेके जाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, उनको पता है। बट दे डू नॉट हैव द कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट द कंटेंट। अब कंटेंट क्रिएशन उन्हें करनी नहीं आती, तो इस केस में उनको जस्ट जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया फर्म्स, उनसे अलायंस करनी है, ठीक है, सही है। क्योंकि हमने देखा कि इन द एंड जो है ना स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स जो है बहुत शार्प है। कंज्यूमर्स को सोर्स मैटर नहीं करती, कंज्यूमर का कंटेंट मैटर करता है। कंज्यूमर्स डिमांड फॉर कंटेंट, ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर ऑन एनी डिवाइस, दे वांट क्वालिटी कंटेंट, और उसके लिए वो पे भी करते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास ये टॉपिक है ऑनलाइन पब्लिशिंग इंडस्ट्री का, ठीक है, कि किस तरह से जो है ऑनलाइन पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है ये ट्रांसफॉर्म हुई है, और किस तरह से जो है ये मामला जो हैं वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के अलावा जो है वो ऑनलाइन पब्लिशिंग इंडस्ट्री की तरफ भी आए, ठीक है, सही है। मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी, और इसके बाद जो है ये यू हैव just a minute please. यू हैव विद यू द ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको जो है ये ऑनलाइन पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो स्टूडेंट्स मैं पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ये, आप इसको आपकी सेल्फ रीडिंग है, उससे गो थ्रू करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, राइट, ठीक है।